Hello, this is FaiZ here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science geography portions with chapter number 7, our country India, right? As we already have discussed about this chapter, right, where we have talked about the diverse or diversification in India on the basis of its culture, traditions, religions, languages, as well as we have talked about the geographical diversity, right? Where one side our country is attached with lofty mountains, plains, plateaus, whereas another part of our country is connected with a great Himalayas, right? Uh, sorry, Hind Mahasagar, right? Arabian Sea, Bay of Bengal, right? So, such a diversity, right, is added to our country. Afterwards, we have discussed about the locational setting. So, in this point, we have discussed that on the globe or a map, right? Uh, where exactly a country is situated, that we already have discussed. Afterwards, we have discussed about the India's neighbors, means the countries that nearby our country, right, which are called neighboring countries. About them we already have discussed about, right? Also we have talked about or discussed about that which countries, right, are connected on a coastal basis, right? Means how many countries of India's neighbor are connected with the sea or a ocean, right? That we already have discussed. So now we will see the next point, right, that is physical divisions, right? Now before going to read it, let we see political and administrative division. India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 29 states and 9 union territories, right? Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of languages. Nowadays, right, it increased to, right, increased in states as well as in union territories too, right? So now here, alluvial deposits, these are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin. Means alluvial deposit किसे कहते हैं? जैसे कि जो rivers के नज़दीक ही में, राइट, कुछ ऐसे पोर्शन है या फिर जो रिवर्स बहती है तो अपने साथ जो चीज़ें बहाव में लेके आती है, तो फिर वो पर्टिकुलर सॉइल जो उससे अटैच होती है वहाँ पे क्या करते हैं, वो डिपॉजिट करती है. आफ्टरवर्ड्स ट्रिब्यूटरी, यू ऑल आर नोइंग दैट कि एक बड़ी सी रिवर होती है जिसके साथ छोटी छोटी रिवर्स क्या होती है, कनेक्ट होती है, दैट इज़ नोन एज ट्रिब्यूटरी. Now, let's start with physical divisions. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts and islands. Means ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, दैट के जो इंडिया है, राइट, उसको फिज़िकल डाइवर्सिटी बहुत सारी प्रोवाइड हुई है, जिसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है. ये सारे की सारी चीज़ें इंडिया में देखने को मिलती है. स्टैंडिंग एज sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himavatale mean the abode of snow. Means कि जब हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे हिमालयाज आया हुआ है, राइट, कि जो बर्फ यानी स्नो से घिरा हुआ एक बड़ा सा माउंटेन है. द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, राइट. अब रेंज किसे कहते हैं, राइट, कि जब एक माउंटेन के साथ दूसरा माउंटेन, दूसरे माउंटेन के साथ तीसरा माउंटेन, ऐसे एक एक रेंज में माउंटेन्स क्रिएट खड़े हुए होते हैं, राइट, उसे क्या कहा जाता है, माउंटेन रेंज कहा जाता है, राइट. जैसे कि यू ऑल आर नोइंग अबाउट दैट कि पर्टिकुलर ग्रुप, राइट, को
हम डिवाइड करते हैं, देन सपोज वेट के हिसाब से दैट पर्टिकुलर 5 स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, उनका जो वेट होता है राइट वो अप्रोक्सीमेटली सबका क्या होता है, सिमिलर होता है, देन वी आर कॉलिंग देम दैट इट इज़ अ सिमिलर रेंज ऑफ वेट राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पे हिमालय की बात की गई है राइट। तो हिमालय में भी हिमालय माउंटेन्स के हिमालय जो माउंटेन्स है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है। द नॉर्थन मोस्ट यानी सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टरवर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, यानी सबसे बड़ी जो पिक्स है यानी सबसे बड़ी जो टोच है राइट वो किस में वो कहाँ पे आई है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री में आई हुए है। आफ्टर डेट मिडल में जो माउंटेन आया है दैट इज़ नोन एज मिडल हिमालय और हिमाचल राइट, लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, और हिमाद्री के साउथ में यानी हिमाद्री से नीचे जब आते हैं मीन साउथ की तरफ आते हैं दैट इट इज़ नोन एज मिडल हिमालय और हिमाचल। Many popular hill stations are situated here. काफ़ी सारे hill stations situated है. So the reason why it is known as a tourist place too. Right? Find out the names of 5 hill stations. Right? The Sivalik is the southernmost range. अब फिर उसके बाद यानी जो लोअर हिमालयस कह सकते हैं राइट वो किसके नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। Now the northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. अब प्लेन हमेशा यानी जो आम तौर पर जो यूजुअली हम जिस लैंड पे रहते हैं राइट, जो हम उसे एक सिर्फ लैंड के नाम से जानते हैं राइट, दैट लैंड और सॉइल यू कैन से राइट, दैट इज़ अ जो फ्लैट लैंड होती है उसे क्या कहा जाता है, प्लेन राइट, प्लेन लैंड कहा जाता है। सो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी जहाँ पे हिमालय फिनिश होता है उसकी साउथ की तरफ यानी उससे बिल्कुल अपोजिट तरफ अपोजिट की ओर आते हैं तो वहाँ पे क्या है, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। और वो जो लैंड होती है वो क्या होती है, लेवल उसका कैसा होता है, फ्लैट होता है। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries, right? अब alluvial deposit already we have discussed that कि जो river अपने साथ चीज़ें लेके आती है, बहा के लेके आती है और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो क्या करती है, डिपॉजिट मीन्स छोड़ देती है, और उससे जो फॉर्मेशन होता है तो वो किसका होता है, प्लेन लैंड का होता है राइट, या फिर कहीं कहीं पे छोटे छोटे हिल्स या फिर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं राइट, या फिर ये कह सकते हैं डेट के छोटे छोटे ड्यून्स बन जाते हैं। नाउ दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, और जिसके चलते ये जो सारी की सारी लैंड है जो रिवर्स से कनेक्टेड है, जिसके चलते वो क्या बन जाती है, काफ़ी फर्टाइल बन जाती है। मीन्स के वहाँ पे फिर कुछ भी क्रॉप्स ग्रो किया जाए या फिर ग्रेन्स को ग्रो किया जाए वो इजीली ग्रो हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशंस इन दिस प्लेन, और यही वजह है दैट कि ये पर्टिकुलर एरियाज़ जो है जो रिवर से कनेक्टेड है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन हिस्ट्री दैट के वाई पीपल आर चूज और वाई पीपल वेर चूज टू लिव ऑन द रिवर बैंक, ऑन द river bank, right? That most common that whatever the things that they wanted to be alive or for that livelihood, most of the things they can get from such places. So the reason why people were and are wanted to live on the river bank. So, in the western part of India lies the Great Indian Desert, right? It is a dry, hot, and sandy stretch of land. It has a very little vegetation, right? जिसको हम कच्छ के रण के नाम से जानते हैं, राइट? वो वेस्ट में आया हुआ है, राइट? सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट वो काफ़ी हॉट भी है और सैंडी मीन्स बट ऑब्वियस रेत से भरा हुआ।
To the south of northern plains lies a peninsular plateau. It is a triangular in shape, right? The relief is highly uneven. This is a region with the numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world. So here you have to underline this Aravalli, sorry, यहाँ से लेके यहाँ तक आफ्टरवर्ड्स। वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो यू हैव टू रीड all this paragraph, but for the objective type questions you can be asked this as in the fill in the blanks, right? No, Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंजेस में कौन शामिल है? अरावली। यानी जब साउथ नॉर्थन मीन्स के साउथ और नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ यानी बीच वाला जो पोर्शन है, करीब करीब हम कहें दैट के महाराष्ट्र है, राइट? वो वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादातर क्या देखने को मिलते हैं? प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, राइट? प्लेट्यूज मीन्स कि वो भी यानी माउंटेन की तरह ही ट्रायंगुलर सरफेस में होता है, लेकिन उसका जो ऊपर का लेवल होता है वो टेबल की तरह होता है, मीन्स फ्लैट होता है। माउंटेन के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, चढ़ तो सकते, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ द स्लॉपीनेस, राइट? बट हियर दैट स्लॉपीनेस couldn't be found, right? होता है बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक माउंटेन की तरह दिखता है, लेकिन जो ऊपर का लेवल होता है वो कैसा होता है? टेबल फ्लैट होता है। नाउ द विंध्यास एंड द सतपुरुष आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, राइट? अब उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? दैट ऑलरेडी गिवन हियर, राइट? द विंध्यास एंड द सतपुरुष आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस, और यही रेंजेस में से जो नर्मदा रिवर है जो भरूच से फ्लोट होके जाती है, एज वेल एज तापी जो सूरत से फ्लोट होके जाती है, वो यहीं से इसी रेंज को क्या करती है? कनेक्ट करती है या फिर उसमें से फ्लोट होती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, यानी वो वेस्ट में से बह के जाती है, जो किसके साथ जुड़ती है? अरेबियन सी से जुड़ती है। द वेस्टर्न घाट्स और Sahyadris border the plateau in the west of the west, and the eastern Ghats provide the eastern boundary, यानी जिसके चलते वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर पे द प्लेट्यूज इन द वेस्ट जो है वो, और एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, यानी प्लेट्यू के चलते जो वेस्ट में भी है और करीब करीब कहाँ पे पाए जाते हैं? ईस्टर्न में भी पाए जाते हैं, जो एक तरीके से हमारी कंट्री को क्या प्रोवाइड करते हैं? बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven, right? The plateau is rich in minerals like coal and iron ore, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो घाट्स देखने को मिलते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? एक के बाद एक जॉइंटेड होते हैं, लेकिन ईस्टर्न में यही घाट्स कैसे देखने को मिलते हैं? ब्रोकन या फिर अनइवन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो मिनरल्स मीन्स के जहाँ से कोल है, आयरन है, राइट? और काफ़ी सारे जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, यानी वो एक तरीके से मिनरल्स की क्या होती है? खदान होती है। To the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie the coastal plain. Coastal plain, you all are knowing that area connected with sea or ocean, right? That particular places is known as a coastal area, right? अब उससे जो फ्लैट लैंड जो ओशन से कनेक्ट करती है, जिसको आमतौर पर हम बीच के नाम से भी जानते हैं, राइट? या तो दैट पोर्शन इज नोन एज कोस्टल एरिया। अब वहीं पे प्लेन है, प्लेन फ्लैट लेवल लैंड है, देन इट इज़ नोन एज कोस्टल प्लेन। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, राइट? वेस्ट के साइड जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही पतला है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, लेकिन जो ईस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लेन जो
हिंद महासागर या फिर बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़ता है वो काफ़ी ब्रॉडर मीन्स बड़ा है। देर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट में से काफ़ी सारी जो रिवर्स है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, ईस्टर्न ओशन के साथ कनेक्ट होती है, जिनमें कौन कौन से शामिल है, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ट्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो किसके साथ जुड़ती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये बंगाल से जुड़ती है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, यानी वहाँ पे उन्होंने यानी अपने माउथ से जब वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ओशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। 3 रिवर्स और 4 रिवर्स कनेक्टेड विद देयर माउथ टू द ओशन, right, that is known as delta 2. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into Bay of Bengal. Sundarban, underline these 2 lines, यहाँ से लेके यहाँ तक, right? No. So Sundarban is famous for its delta form, right, where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. No. So here Aparna Sinha, class 9 student, and Vedant Swain, class 4 student, right? What they have did, let we see, right? Danger waters. Down there in Sumatra started a big quake, but no one has expected the tsunami it did make. Waves big as mountains like an army, they charged and into the South Asian land with all the might. They barked. मीन्स कि यहाँ पे जब 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, तो जो अपर्णा सिन्हा है उन्होंने क्या लिखा है, दैट के जो वाटर है वो बहुत ही भयानक दिख रहा था, जिसका यानी उन्होंने क्या किया है उसके बारे में लिखा है, दैट हाउ इट लुक्स फुल विथ फ्यूरी, और उसको देखते ही क्या लगता था, डर लगता था। दे किल्ड पीपल इन 1000, उन वो जो ताकत है उसने किसको, हजारों लोगों को जैसे मार दिया था। एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग टू फार्मलैंड्स, यानी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है उसको क्या बना दिया था, फार्मलैंड्स बना दिया था। द वेव्स केम्स एंड वेंट फ्रॉम सुमत्रा टू अदर प्लेसेस, वो सुमत्रा से गुजर के कहाँ पे, काफ़ी दूसरे जो प्लेसेस है उसको भी तहस नहस कर दिए थे। सो सुमत्रा से स्टार्ट होता था बिग क्वैक, मीन्स एक बड़ा सा तूफान क्रिएट हुआ था, बट नो वन हैज़ एक्सपेक्टेड द सुनामी डिड मेक, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये सुनामी का रूप लेगा। वेव्स बिग एज माउंटेन्स लाइक एन आर्मी चार्ज, यानी जो उसकी जो वेव्स थी वो पहाड़ जैसी बड़ी हो गई थी, जैसे एक आर्मी लड़ाई के लिए तैयार होती है और दुश्मनों के ऊपर अटैक करना चाहती है, कुछ उस तरीके से। एंड इन टू द साउथ एशियन लैंड्स विद ऑल माइट दे बार्ग, यानी और साउथ की ओर बढ़ते जा रहे थे, और जैसे कि उनको सब चीज़ों को तहस नहस करना था। एंड लेफ्ट नथिंग देयर एक्सेप्ट एम्प्टी स्पेसेस, और वहाँ पे उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा था, सिर्फ वहाँ पे क्या था, सिर्फ खाली खाली जगह थी। पीपल वर लेफ्ट विदाउट शेल्टर्स एंड फूड, लोगों के पास यानी रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना नहीं था। टूरिस्ट हु हैड कम डिसाइडेड दैट नेवर शुड, यानी जहाँ पे जो घूमने के लिए आए थे वो भी अब सोचेंगे दैट कि हमें कहाँ पे अब फिर से यहाँ पे आना नहीं है। पीपल लॉस देयर लव्ड नियर एंड डियर वंस, लोगों ने अपने चहितों को क्या कर दिया है, यानी उसको खो दिया है। सर्वाइवर्स स्नैच एंड फाउट फॉर क्लोथ्स एंड बर्न्स, यानी जो सर्वाइवर्स थे, यानी जो खुद को बचाना चाहते थे या फिर खुद की ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो क्लोथ्स और बर्न्स के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। रिलीफ टू द अफेक्टेड वॉज बींग सेंट आउट, और उन लोगों के लिए कुछ रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट के थ्रू भेजे गए और लोगों ने भी उन्हें सप्लाई किए। बट नाउ ऑफ डिजीज़ देयर वॉज अ बिग बाउट, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, तो अब ये चिंता हो रही है दैट कि इसमें से दूसरी काफ़ी सारी डिजीज़ फैलने के आसार है।
पीपल फियर्ड गोइंग नियर द सी, अब लोगों को सी के नज़दीक जाने में भी क्या लग रहा था, डर लग रहा था. कुड इट स्वेल अप अगेन गिविंग नो टाइम टू फ्ली, क्या वो फिर से ऐसा होगा डैट क्या हमें टाइम नहीं देगा और फिर से हो जाएगा. द फियर इंस्टॉल इन देम मे स्टे बाय द डेज, यानी काफ़ी दिनों तक ये जो डर है वो सब के दिलों में रहेगा. बट इन दिस डार्कनेस ऑफ सोरो देर इज़ अ स्टिल हैप्पी रे, लेकिन इतना सब दुख या फिर दर्दनाक होने के बावजूद भी सबके दिलों में एक आशा की, खुशी की क्या है, किरण है. राइट. सो इट वॉज रिटन बाय अपर्णा सिन्हा हु वॉज और हु इज क्लास 9 स्टूडेंट. And here Vedant Swain, right, he has drew this particular picture, right. Then you can see, right, where यानी बच्चे खेल रहे हैं, right, and everyone on the beach, right, enjoying, right, and you can see the ocean, right, or tsunami killer waves, यानी इतने बड़े जोर शोर शोर से क्या हो रही है, अपने उफान पे है. राइट. दैट वाज ड्रोन बाय द वेदांत श्रेन. सो बाय पिक्चर, राइट, ही हैज shown this. So here a continue topic, two groups of islands also form part of India, that is Lakshadweep Island, that on the west side are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala, और वो जो केरला से हट के आए हुए हैं. The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. फिर उसके बाद अंडमान निकोबार है जो साउथ ईस्ट में आए हुए हैं. राइट. डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004, जो 2004 में जो सुनामी आई थी तो वो अफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, देन अंडमान निकोबार ही अफेक्ट हुआ था. Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. So लोगों को पूछना है, न्यूज़पेपर में जो उसके बारे में इश्तिहार दिए गए थे, न्यूज़ दिए गए थे, उसको रीड करके पता लगाना है दैट कि लोगों ने ये चैलेंजेस का सामना कैसे किया और किस तरीके से लोगों ने अपनी लाइफ को क्या बनाया, कंफर्टेबल किया, और किस तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल किया. सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, और सुनामी एक बहुत बड़ी वेव थी जो सी के अंदर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, जिसके चलते वो फिर अपने रास्ते में आने वाले जितने भी यानी एरियाज थे उसको चपेट में ले लिया और काफ़ी भारी भारी नुकसान वहाँ पे क्रिएट किया था, जान का, माल का, एवरीथिंग. राइट. सो this is all for this particular chapter. Right. We will continue chapter number 8 with these portions. Right. So till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.